Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 504. संगत करो दीनदार की और जा बैठो उसी के पास। हींग के बासन में हींग की, फूलों के बासन में फूलों की बात। जो चाहो खुशहाली दिल की, तो नित रहो खुश गुलजार। जो भाई बिरादर दीन के, उनका नित करो दीदार। मौलाना हाजिर इमाम से सलवात। दीनदारों, दुनिया के अंदर इंसान जब जन्म लेता है तो उस आदमी को सबसे पहले अपनी माँ की संगत मिलती है। इंसान अगर उसके भाई बहन, कुटुंब कबीला, बाप वगैरह, उसकी संगत उसको मिलती है और अपनी माँ से, बाप से, बहन भाई से, कुटुंब से वो चीजें सीखता है कि जो चीजें उस आदमी के सारे जीवन में इस तरह से टूट टूट के भरी जाती हैं कि फिर जिंदगी में उनका मिटना मुश्किल है, अदल बदल हो सकता है। संगत इतनी पावरफुल चीज है। एक माता को जंगल में बच्चा हुआ, अफसोस ये कि बच्चे का जन्म हुआ और मां मर गई, बिल्कुल अकेली थी। बच्चा बेहोश पड़ा है, भूख की वजह से रो रो के थक गया, बेहोश हो गया। इस जंगल के अंदर चिंपांजी रहते थे। चिंपांजी बंदरों का एक टोला निकला। चिंपांजी और आदमी में बहुत थोड़ा फर्क है। जब ये लोग नजदीक आए, मां मरी हुई थी, बच्चा होश में आ चुका था और रो रहा था। एक चिंपांजी मादा ने, फीमेल चिंपांजी ने इस बच्चे को उठा लिया। खुदा की कुदरत, इसका भी एक छोटा बच्चा था और इस चिंपांजी ने, फीमेल चिंपांजी ने इस बच्चे को सबसे पहली धावन पिलाई। बच्चा बड़ा हुआ, भले आदमी का बच्चा था, लेकिन इसकी संगत जो थी वो चिंपांजी बंदरों की थी। आदमी की तरह इसने कोई भी बात बोलना चलना कुछ भी नहीं सीखा। जैसे बंदर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, नाचते कूदते हैं, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से 18 साल का जवान हो गया, बंदरों के साथ बंदर हो गया। शरीर पे इतने बाल तो न निकले, लेकिन दाढ़ी, मूंछ, सिर के बाल ऐसे हो गए कि ना ये बंदर लगे ना ये आदमी लगे। 18 साल की जब इसकी उम्र हुई, बंदरों के एक टोले के पीछे आदमियों की शिकारी पार्टी पड़ी। शिकारियों में से एक शिकारी ने देखा कि इनमें एक बंदर आदमी की तरह स्ट्रेट चलता है, उसके शरीर पे बाल भी नहीं। दूरबीन लगा के अच्छी तरह से जब स्टडी की तो पता लगा
کہ یہ کوئی عجیب جانور ہے، وہ یہ معلوم نہیں کر سکے کہ یہ آدمی کا بچہ ہے. انہوں نے ٹریپ لگائے اور آخر ٹریپ کے اندر اس کو پکڑا. ٹریپ میں پکڑ کے ایک میڈیکل کالج میں پنجرا بنا کے اس کو اسٹڈی کرنے لگے. پھر پتہ لگا کہ یہ آدمی کا بچہ ہے، مگر کوئی وجہ سے ان بندروں کے ساتھ چلا گیا ہے. بڑی تلاش تپاس کے بعد اس کی حقیقت کا پتہ لگا. اس کے ماتا پتا جو تھے دوسرے ملے، ماں تو مر گئی تھی. ان کے سے پتہ لگا کہ جنگل کے اندر حاملہ عورت تھی، وہ ہم کو مری ہوئی ملی، لیکن بچے کا کیا ہوا اس کا ہمیں معلوم نہیں تھا. ہم ایسا سمجھے کہ بچہ کولا بچہ ہے، کولا گوشت ہے، تو کوئی جنگل کا جانور اس کو کھا گیا ہوگا. ماں کی لاش ملی، اس کو انہوں نے ٹرین کیا. آہستہ 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 بولنا سیکھ نہ سکا، مگر اس میں سمجھداری پیدا ہو گئی. ایک انسان کا بچہ اگر باندروں میں چلا جائے تو وہ باندر بن جاتا ہے. اگر انسان کا بچہ ڈاکوؤں میں چلا جائے تو وہ ڈاکو بنتا ہے. چوروں میں سنگت میں بیٹھ جائے تو چور بنتا ہے. پروفیسروں کی سنگت میں آ جائے علم والا بنتا ہے. عالموں اور فقیروں کی سنگت میں آئے تو دین والا بنتا ہے. جیسے انسان کی سنگت صحبت ہوتی ہے، ایسا آہستہ آہستہ اس کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے. مولا مرتضیٰ علی فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ دیندار کی سنگت کرو. ایماندار آدمی ہوئے، دیندار ہوئے، مومن ہوئے، خدا کو چاہنے والا ہوئے، اس کی سنگت میں بیٹھو تو دگا نہیں کرے گا، فائدہ ملے گا، نقصان نہیں ہوگا. اس کی سنگت میں ہمیشہ فائدہ رہے گا. مولا مرتضیٰ علی داخلہ دیتے ہیں کہ ایک باسن میں ہینگ ڈال دو، ڈھکنا بند کر کے 1-2 دن رکھو. دوسرے باسن میں پھول ڈالو اور پھر دونوں کو خالی کر کے سونگو تو خالی باسن میں سے بھی ہینگ والے باسن میں سے ہینگ کی بات آئے گی، پھولوں والے باسن میں سے پھولوں کی بات آئے گی. انوار سہیلی نام کی ایک فارسی چوپڑی ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی حکایت لکھی ہے. آپ کو یاد ہے میں آپ کے کڑیاکوں کے اندر آ کے میں ایسی بہت سی حکایتیں بولا کرتا ہوں، اور یہ انوار سہیلی میں سے ایسی اور کئی چھوٹی چھوٹی میں نے وارتائیں آپ کو سنائی ہیں. ایک چھوٹی سی وارتا ہے سنگت کے اوپر کہ سنگت کرنے سے انسان کے اوپر اگر سنگت بری ہے تو نقصان ہو جاتا ہے. ایک اندر تھا چوہا، ایک کاچبے کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی. کاچبا پانی میں رہے، انگلش میں کاچبے کو ٹورٹوئس کہتے ہیں. کچھوا پانی میں رہے، ہم اردو میں کچھوا کہتے ہیں. اور چوہا اندر باہر رہتا ہے، وہ پانی میں جاوے تو مر جاوے. لیکن جو کچھوا ہے وہ پانی میں سے نکل کے زمین کے اوپر بھی چل سکتا ہے. تو وہ پانی میں رہتا تھا. ندی کے کنارے پہ ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ کے اندر اپنا گھر بنا کے یہ اندر بھی ادھر رہتا تھا. کچھوا پانی میں سے نکلے، یہ جھاڑ کے اس در میں سے نکلے، دونوں بیٹھ کے باتیں کریں، دوستی سنگت چلنے لگی. ایک دن بڑی دیر ہوئی، چوہا اپنے دوست کے پاس بیٹھا رہا. تھوڑی دیر ہوئی تو اس کا چھوٹا بھائی اس کو بلانے آیا. کوئی دوسرا اندر آیا، اس نے رضا لی اپنے دوست کی کہ میری ماں مجھے بلاتی ہے. گھر پہنچا، ماں نے کہا کہ مجھے تو آج پتہ لگا کہ تو نے کچھوے کی دوستی کی ہے. کہ ہاں ماں، دیکھ بھلے تجھ کو اس میں نفع نقصان ہوئے کہ نہ ہوئے وہ تیری قسمت کی بات ہے، لیکن دوستی ہمیشہ اپنے جیسوں کی کرنا. جو اپنے جیسے نہیں
अपने सर्कल में से बाहर निकल के तुम दोस्ती करोगे, उसमें तकलीफ हो जाएगी। इसी तरह से उधर वो कछुए की मां ने इसको कहा, क्यों आज लेट हुए? कहने लगा, अम्मा मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास किनारे पे बैठा था। तो दोस्त है कि एक चूहा? अरे तूने गजब किया, चूहे की दोस्ती और तेरे साथ? वो पानी में आ नहीं सकता, तू उसके घर जा नहीं सकता, वो तेरे घर आ नहीं सकता, ये कैसी दोस्ती? वो छोटी सी खुड में रहता है, ऐसे छोटे से दर के अंदर तू जा नहीं सकता, वो पानी में आ नहीं सकता। कहते माँ हमारी दोस्ती तो ऐसी है, किनारे पे बैठ के गप्पे मारते हैं, थोड़ी पिकनिक करते हैं और वो अपने घर में अपने घर। कहने लगी ये गजब की बात है, हमेशा दोस्ती अपने जैसों से करो बेटा। लेकिन जवानी है ना, बचपना और जवानी समझदारी के दुश्मन, और समझदारी बचपन में तो होती नहीं। नवी नवी जवानी होती है तो उसको ताकत का घुमंड होता है। नवे जवानों को ये ख्याल होता है कि हमारे जैसा कोई अकल वाला नहीं। वो बाप को, दादा को, वडीलों को बुद्धू समझते हैं और सबसे बड़े बुद्धू खुद होते हैं, क्योंकि उनको दुनिया के जीवन का कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए उन्हें मालूम नहीं होता। वो वडीलों की जो बातें होती हैं नहीं समझते जब तक कि वो मार खावे और खुद वडील बने, फिर वडीलों को याद करते हैं तो वडील तो कब्रिस्तान में पड़े होते हैं। जब ये समझ आती है तब तक तो 60-70% वडील तो नीचे जमीन के हो जाते हैं। इन्होंने भी अपनी अपनी मां की बात मानी नहीं। एक दिन चूहे को कुछ काम हुआ, तो कोई नई चीज लेके आया किधर से, उसका बड़ा दिल चाहा कि मैं अपने दोस्त को खिलाऊं, लेकिन करे क्या, पानी में कुछ जा नहीं सकता। अब बुलावे कैसे? किनारे के ऊपर खड़े रह के बड़ा शोर मचाया उसने, लेकिन उसने सुना ही नहीं। आखिर बेचारा बैठा रहा। शाम के नजदीक कछुआ बाहर आया, बड़ा बिगड़ा हुआ था चूहा उसके ऊपर। कहते आज तेरे को मैंने इतनी आवाजें लगाई, कहते मूर्ख आवाज लगाई, मुझे थोड़ा नीचे पाताल के अंदर तेरी आवाज आवे, और उंदर की आवाज कितनी बड़ी। चलो खैर, थोड़ा गिला शिकवा हुआ, रूठ गया, ठीक हुआ, बातें हुई। उंदर ने सोचा यार कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्या रास्ता निकाले, मैं तेरे को बुलाना चाहूं तो बुला सकूं, तू मुझे बुलाना चाहे बुला सके। बोले अच्छा हम टेलीफोन लगाएं। टेलीफोन कैसे लगाओगे? एक बहुत बड़ी रस्सी कहीं से ढूंढ लाया, डोरी ले आया उंदर। कहता ये डोरी तू अपने एक पांव के साथ बांध ले, एक छेड़ा, और दूसरा छेड़ा मैं अपने पांव के साथ बांध लेता हूं। तो पांव में तो फिट ना आया, क्योंकि काचबे का पांव जाड़ा होता है, फिट हो गया। इसके पांव में से निकल जावे, चलने में तकलीफ होवे, तो उंदर ने गले में उसका एक छेड़ा बांध लिया। जब भी एक दूसरे को जरूरत पड़े तो वो रस्सी को, डोरी को खींचे तो वो पानी में से बाहर आ जाए, अपने घर से बाहर आ जाए। बड़े राजी के ये नवा सिस्टम बहुत अच्छा है। एक दिन बड़े जोर की बारिश हुई, बारिश ऐसी हुई ठंडी बढ़ गई। कछुआ तो नीचे, क्योंकि पानी नीचे से गर्म होता है, वो एकदम पानी की तह में बैठा रहा और ये अपने दर में घुसा रहा। दर में भी पानी आ गया था, बड़ा परेशान हुआ। थोड़ी देर के बाद जब तड़का निकला, सूरज निकला, तो उंदर को ऐसा हुआ चलो ना आज मैं थोड़ी सी हवा खाऊं, थोड़ी धूप खाऊं, जरा बदन में गर्मी आवे। तो वो निकल के तड़के में किनारे के ऊपर बैठा। तड़का ऐसा मजे का लगा, उंदर की आंखें बंद हो गई, मजे से बैठा था, डोरी गले में बंधी हुई है। ऊपर से एक चील ने देखा, चमड़ी ने, उसने मारी एक जरूर डाइव मार के इसको अपने पंजों में पकड़ के ले गई। चमड़ी इसको पकड़ के ले गई, मगर इसके गले में डोरी बंधी थी। जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ती गई, डोरी भी साथ चढ़ती गई। नीचे गरम गरम पानी के अंदर वो भी बेचारा आंखें बंद करके पड़ा था। एक जोर का झटका लगा, इसने पता नहीं क्या हुआ, कयामत आ गई। देखा तो पानी के बाहर निकला और लटकने लगा। चमड़ी ने देखा कि ये पता नहीं और क्या बला है। ऊपर उंदर डोरी के साथ नीचे लटकता हुआ ये काचबा। चमड़ी ने ऐसा एक चक्कर लगाया, गांव के छोकरे, गांव के आदमी इकट्ठे हो गए कि ये नवा तमाशा। चमड़ी बहुत ऊपर चली गई और ऊपर जाके कुछ डोरी हिलते हिलते या टूट गई या पांव में से निकल गई। बड़ी बुलंदी के ऊपर से कछुआ गिरा एक पत्थर के ऊपर, उसकी सारी ढाल बाल चकनाचूर हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गया, मर गया। मावित्तर का कहना माना नहीं, उंदर की संगत के अंदर खुद भी मरा।
बदमाशों की संगत में बैठ के इंसान को कभी नेकी नहीं मिलती। लुच्चे आदमी की संगत में बैठ के इंसान, अगर मान लो कि लुच्चाई कभी जल्दी से नहीं भी लगी, तो उनकी संगत के अंदर से जो रंग निकला है वो जरूर उनको खराब करेगा। सफेद कपड़े पहन के शार्ट स्किन का सूट पहनो और किसी कोलसा बेचने वाले की दुकान पे सिर्फ 5 मिनट तमाम वडीलों ने, महात्माओं ने, आलिमों ने इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया, अच्छे लोगों की संगत में बैठो। अच्छे लोगों की संगत के अंदर अच्छाइयां मिलेंगी, अनुभव मिलेगा, समझदारी की बातें मिलेंगी, जो जीवन में डालने से जीवन में फायदा रूप बनती हैं। हम इस्माइली लोग जो हैं, हमारी संगत कैसी होनी चाहिए? हमारे अपने मजहब के हिसाब से मौला ने कहा है कलाम में कि संगत करो दीनदार की, जा बैठो उसी के पास। फिर फरमाया कि तुम दीनदार के पास रोज जाके बैठो तो तुम्हारे दिल को खुशी मिलेगी, जो चाहो खुशहाली दिल की। अगर तुम दिल की खुशहाली चाहते हो तो नित रहो खुशगुलजार, हर वक्त खुश रहो। जो भाई बिरादर दीन के, जो दीन के भाई बहन हैं, उनका नित करो दीदार। अपने दीन भाइयों का दीदार करो, अपनी दीन बहनों का दीदार करो, मन साफ रखो, हमेशा प्रफुल्लित और खुशी रहो, खुदा को याद करो और उसकी संगत पाओ। जिस तरह दुनिया के अंदर इंसान अगर किसी राजा बादशाह की संगत में आ जाए तो आहिस्ता 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 उसका जो जगह और मकाम है वो अमीरों वजीरों की तरफ चले जाता है। जो बादशाह का जो दोस्त हो जाए तो उसको छोटे छोटे सिपाही भी सलाम करते, सैल्यूट करते हैं। फिर उसका आना जाना अमीरों वजीरों के पास होता है। अमीर वजीर जानते हैं कि ये बादशाह का दोस्त है। बादशाहों की सोबत संगत में आने वाले की जो लाइफ है वो बदल जाती है। इसी तरह से खुदा ताला सबसे बड़ा बादशाह है, जमीन आसमान का सुल्तान मौला बापा है। कभी हमको मौला की संगत मिले तो, अगर दुनिया की संगत के अंदर हमको दुनिया के फायदे होते हैं, जैसी संगत ऐसा फायदा। आप पैसे वाले की दोस्ती करो तो भले वो पैसे वाला आपको 2 दमड़ी नहीं देगा, लेकिन एक बात है कि पैसा इकट्ठा करने की चालाकियां आप सीख जाओगे। चोरों की संगत में बैठो तो चोरी करने का हुनर आ जाएगा। डाकू की संगत में डाकूगिरी आएगी। इल्म वाले की संगत में इल्म मिलेगा। कभी खुदा की संगत करो तो खुदाई शक्तियां मिलेंगी। खुदा की संगत करोगे तो खुदाई शक्तियां मिलेंगी। खुदा की संगत करने से फरिश्ते सलाम करेंगे। जिस तरह राजा की दोस्ती में आके राजा के छोटे मोटे सिपाही अमीर वजीर से लूट करते हैं, ऐसा ही खुदा की दोस्ती करने वाले को फरिश्ते सलाम करते हैं। पीर ने कहा है गिनान में, तेने देवलोक प्रणाम करे। देवलोक यानी फरिश्ते उसको प्रणाम करते हैं और उसका मकाम वैकुंठ होता है। मौला की संगत हमको जमात खाने में मिले। मौला का जो दरबार है, जिस तरह राजा का दरबार है, हमारे प्रेसिडेंट को मिलना होवे तो स्टेट हाउस जाके मिलते हैं। ये मौला का स्टेट हाउस है, ये मौला का दरबार है, ये सुल्तान का दरबार है, दीनो दुनिया के सुल्तान का। उसके दरबार में अदब मान से, हशमत से, रिस्पेक्ट से, बहुत बड़ी आजिज़ी से हम उसके दरबार में आते हैं। राजाओं के दरबार में, राजाओं के दरबार का मान, अदब, रिस्पेक्ट होती है। इसी तरह से खुदा के दरबार के अंदर भी उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसका अदब मान होता है। और उस अदब मान के हिसाब से जब हम मौला के दरबार में आते हैं, हम सलाम करते हैं, आके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं, मौला का नाम लेते हैं, मौला की दोस्ती में आते हैं। अब मैं आपको मौला का फरमान सुनाऊं। हजरीमन कहते हैं कि जमात है वो मेरा अंग है। माँ बाप के फरमान में माँ बाप कहते हैं जमात मेरा अंग है। नाखून, उंगलियां, शरीर के अवयवियों, ये अंग है ना इंसान का। जो आदमी जमात खाने आता है वो मौलाना हाजिर इमाम का अंग बनता है। हाजिर इमाम पवित्र है, हाजिर इमाम का अंग भी पवित्र है। अगर हम यहाँ जमात खाने में आते हैं
तो हम हाजिर इमाम का अंग बन के हम पवित्र बनते हैं। कोई माँ और बाप अपने बच्चे को कहते हैं तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। ये कलेजे का टुकड़ा, शरीर में से कलेजा निकाल के माँ ने उसके टुकड़े नहीं बनाए, लेकिन उसको कहा कि तू मेरा अंग है, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। ये मोहब्बत के हिसाब से, यानी तू और मैं एक हैं। बच्चे और माँ में फर्क नहीं होता, बाप बच्चे में फर्क नहीं होता, क्योंकि माँ बाप बच्चे को अपने कलेजे का टुकड़ा समझते हैं, अपना अंग समझते हैं, अपना लोही समझते हैं, अपना दिल समझते हैं, अपना आप समझते हैं। ये दोनों एक ही होते हैं। इसी तरह से मोमिन मौलाना हाजिर इमाम का रूहानी हिसाब में अंग है, मौलाना हाजिर इमाम के कलेजे का टुकड़ा है, मौलाना हाजिर इमाम के प्यार का उसके साथ संबंध है। जो आदमी जमात खाने आता है वो मौलाना हाजिर इमाम का अंग है, वो मौलाना हाजिर इमाम के विचारों में है, वो मौलाना हाजिर इमाम के शरीर के साथ लगता है। पीरों ने कहा कि नाम में कि मैं उसको अपने अंग के साथ लगा के रखूं। सतगुरु कह रहे दास हमारा जय हो ऐसे देखे हमारा गले ना हार। वो मेरे गले का हार है, अंग के साथ लग के रहता है। गला अंग है और हार उस गले में अंग बन जाता है। इसी तरह से हम जब जमात खाने आते हैं, मौलाना हाजिर इमाम के इस दरबार के अंदर हम मौला बापा का शरीर बनते हैं, अंग बनते हैं। हम उसकी मोहब्बत में आ जाते हैं, हम उसके विचारों में आ जाते हैं, हम उसके प्रेम की पछेड़ी के नीचे आ जाते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी पछेड़ी में छुपा लेती है। इस संगत सोबत में आके हमको क्या क्या रूहानी फायदे मिलते हैं। अब बताओ कि हाजिर इमाम बैठा है, हम उसके पास जाके बैठे कि पीछे में जाके शराबियों की संगत में बैठे। हम हाजिर इमाम के पास जाके बैठे उसकी संगत करें वो अच्छा, कि हम कोई चोरों बदमाशुओं डाकुओं की संगत में बैठे वो अच्छा। मौलाना हाजिर इमाम के दरबार में आके हाजिर इमाम की संगत में बैठे वो अच्छा, कि हम सिनेमा में रखड़ते होवे या हम अपनी किसी क्लब के अंदर बैठे होवे वो अच्छा। हाजिर इमाम की संगत में आके उसके दरबार में बैठे वो अच्छा है, कि या हम लोगों के साथ बैठ के गपगपोड़े मार के और एक दूसरे की निंदा करते होंगे और गुनाह लेते होंगे वो अच्छा। माँ बाप फरमाया जो आदमी समी सांझ को जमात खाने नहीं आता वो अपने आप के ऊपर जुल्म करता है, सचमुच जुल्म होता है, क्योंकि वो आदमी खोटे रास्ते जा रहा है, खोटे रास्ते। त्रांबो ईसो लईने भेड़िए तेनी मोहरज थाए चोवाचे ए चढ़ीते नहीं नीपजे खोटी कोई हाथ न सुहाए त्रांबोती तो लईने भेड़िए। त्रांबा सीसा इन दो की मिक्सचर करो तो निकल की तरह कॉपर कलर की मोहर बनती है, खोटी मोहर। फिर फरमाते हैं कि इस तरह से ये जो तुम मोहर बना लेते हो, कभी गांव में उसको चलाओ तो खोटी समझ के उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसी तरह से दीनदारों, जो हाजिर इमाम का चाहने वाला, हाजिर इमाम का मुरीद, हाजिर इमाम का मोमन है, वो जब दुनिया की बदमाश संगतों सोबतों में बैठता है तो वो चलता नहीं, वो चीज निभती नहीं। यही त्रांबा शीशे के ठिकाने कभी 1-2% या 3% जितना सोने के साथ लगाया जाए और दरेक सोना मोहर के अंदर थोड़ा त्रांबा डालते हैं, कारण के सोना इतना नरम होता है। 100% सोना कभी भी मोहर में या दरदागीने में वपरे में नहीं आता, नेवर। 100% सोना जो होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। सॉफ्ट होने के कारण से मोहर की उसके ऊपर जो स्टैंप लगती है, डाई, वो घिस जाती है। इसलिए उसके अंदर
थोड़ा सा रखना पड़ता है, तो 2%, 3%, 5% तलक रखते हैं, त्रांबा डालते हैं सोने में, तो ये त्रांबे की सोने जितनी कीमत बनती है। संगत के कारण से हजर इमाम 100% सोना है। हम कभी इस दुनिया के अंदर 100% मजहब के ऊपर जो चलें, 100% बिल्कुल उस तरह से, तो फिर इस दुनिया के अंदर हमारा रहना खत्म हो जाता है। मतलब ये कि फिर दुनिया की सब चीजें वगैरह हैं, उससे हम फिर बेदरकार अपनी ड्यूटियां भी भूल जाते हैं। ये तो फिर मौत का समय है। जो इंसान 100% हो गया तो कुदरत फिर उसको रहने भी नहीं देती, उसको उठा लेती है, क्योंकि वो खुदा बन गया, वासल हक हो गया। मगर दुनिया में रहने के लिए मोहर के अंदर थोड़ा सा इसलिए डाला जाता है त्रांबा, ताकि मोहर टिक सके। हमको हमारे इमाम ने फरमाया, बिजनेस करो, बाल बच्चे पैदा करो, दुनिया के अंदर रहो, रीत पर की थोड़ी बहुत मौज मजा भी करो, खाना पीना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी तरह जीवन गुजारो। ये त्रांबा 2%, 3% है। दुनिया के अंदर दुनियादारी रखना 2-3% जितनी, ताकि तुम्हारा जो 100 टच का सोना है वो खराब ना हो जाए। इससे ज्यादा नहीं। दुनिया में रहो, मगर अपना दिल दुनिया पे मत लगाना। बाल बच्चे हमारी ड्यूटी है, बिजनेस रोजगार हमारी ड्यूटी है, खाना पीना शरीर टिकाने के लिए हमारी ड्यूटी है। हमको जो जो दुनिया के अंदर मौला की तरफ से जोखमदारियां मिली हैं, हमको हुक्म किया है, वो जोखमदारियां हाजिर इमाम की इबादत में आती हैं। गुरबी सदरुद्दीन माँ बाप ने लिखा है कि द्राक्ष है, आप द्राक्ष ग्रेप्स ले जाके दुकान से, तो ग्रेप वाला जो बेचने वाला है दुकानदार 3 से 4 शिलिंग रत्तल बेचता है, वो एक झुमका उठा के तोल के दे देता है। आप ग्रेप खा जाते हो और उसकी जो डांखड़ियां होती हैं वो फेंक देते हो, लेकिन इन डांखड़ियों के भी आपने 4 शिलिंग रत्तल के हिसाब से पैसे दिए हैं। तो ग्रेप्स के साथ डांखड़ियों की भी कीमत होती है, हालांकि बड़ी हल्की है, लाइट है, उसका कोई खास वजन नहीं, मगर फिर भी ग्रेप्स की संगत में डांखड़ी की भी वही कीमत है जो ग्रेप्स की कीमत है। इसी तरह से मौलाना हजर इमाम की संगत में आके हम हजर इमाम नहीं बनते, हम खुदा नहीं बन सकते जब तलक के दुनिया में हम जीते हैं। मगर जब हम दुनिया के अंदर अपने मालिक की संगत में हमेशा रहें, तो मरने के बाद हमारा आत्मा मौलाना हजर इमाम के नूर में जाके हमको भी हाजिर इमाम बना देता है। हम फिर खुदा बन जाते हैं, हमारी हस्ती मिट जाती है, कारण कि हमारा आत्मा, हमारे शरीर में जो रूह है वो मौलाना हजर इमाम का नूर है। और यही हमारा एम और ध्येय है, वहां तक हमको जाना और पहुंचना है। कभी वहां तक नहीं गए तो फिर 184 के फेरे में पड़ जाएंगे। 184 का फेरा, कदाच हम वापस जानवर नहीं बने तो मतलब ये चक्कर में पड़ गए, मुसीबतों में पड़ गए। आप देखो दुनिया के अंदर जो लोग खुदा से हटे हुए हैं, सबके सब दुखी हैं। गई कल हमारे प्रेसिडेंट मौलिमू नेरेरे ने स्पीच की, परसों कई कल के पेपर में थी, वो स्पीच पढ़ने जैसी है। हमारे नामदार प्रेसिडेंट मौलिमू जूलियस नेरेरे ने बड़ी अच्छी स्पीच की है। वो कहता मैं खुदा को मानता हूं। पेपर में है, प्रेसिडेंट ने कहा है कि बहुत से लोग मुझको कम्युनिस्ट समझते हैं, लेकिन मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, कारण के मैं खुदा को मानता हूं, खुदा में मेरा विश्वास है। तो मैं ये कहता था कि जो लोग खुदा में विश्वास नहीं रखते, जो अधर्मी हैं, जिधर जिधर भी हैं, वो सुखी नहीं है। वो देश जैसे कि रशिया, जैसे कि चाइना या और दूसरे देश हैं कि जिन्होंने कम्युनिज्म ले लिया है। कम्युनिज्म लेने से सबसे पहले खुदा को छोड़ना पड़ता है। उन्होंने खुदा का त्याग कर दिया, तो खुदा को छोड़ के उन्होंने दूसरा खुदा बनाया। रशिया वालों ने स्टालिन को खुदा बनाया, चाइना वालों ने माओ को खुदा बनाया। असल खुदा को छोड़ के खोटा खुदा बनाया। उसके बगैर काम तो नहीं चला उनको। लेकिन खुदा को छोड़ के इन देशों में कि जिधर खुदा नहीं है, खुदा की मान्यता नहीं है, वो कोई भी सुखी नहीं है। और वो आदमी भी जो खुदा ताला को भूल जाता है या खुदा की हस्ती को नहीं मानता, उस आदमी का जीवन देख लो, उसको कोई सुख नहीं।
सुख की तारवनी मोटर और बंगले से मत करना। मोटरों बंगलों वाले आदमी सुखी नहीं है जितने झोंपड़ी वाले सुखी हैं। अमीरों को, पैसे वालों को सुख नहीं, और दुनिया के दरेक धर्म वालों ने पैसे वालों को तो जूतियां ही मारी हैं। और बात भी सच है, पैसे वाले आदमी का दिल तंग हो जाता है, उसकी बुद्धि पैसे में ही रहती है, उसका प्रेम पैसे में ही रहता है। वो बीवी बच्चे के प्यार को भी पैसे के ऊपर पहले टेस्ट करके फिर प्यार करता है। अगर पैसे की बात आती है तो वो प्यार भी छोड़ देता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, ईसा नबी फरमाया कि सुई के नाके में से ऊंटों की एक कतार निकल जाए, सुई के नाके में से ऊंट निकल जावे, ईसा नबी कहते हैं ये पॉसिबल है। लेकिन पैसे वाला जन्नत के दरवाजे में से अंदर चला जावे, वो पैसे वाला पॉसिबल नहीं है। सुई के नाके में से ऊंट निकल जावे पॉसिबल है, लेकिन पैसे वाला जन्नत के दरवाजे में से निकल के जन्नत में जावे, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे हज़रत इमाम ने हमको फरमाया फरमान में कि अगर पैसे वाला और एक गरीब दोनों एक शरीके मोमिन होवे तो गरीब आदमी जन्नत में पहले जाएगा और पैसे वाला 50,000 साल दरवाजे के ऊपर पहले खड़ा रहेगा। आधे लाख बरस के बाद उसको कहेंगे अच्छा अभी तू अंदर। पैसे का मतलब जिसके पास 50 लाख के करोड़ शिलिंग होवे उसको पैसे वाला मत समझना, क्योंकि 50 लाख शिलिंग वाले के करोड़ शिलिंग वाले फकीर गरीब भी होते हैं और 1,00,000-2 लाख शिलिंग वाले पैसे वाले होते हैं। पैसे वाला किसको कहते हैं? जिसको पैसे से प्रेम होवे। कभी 10,000 शिलिंग वाला आदमी एकदम पैसे का पुजारी बन गया है और खुदा को छोड़ दिया तो ये 10,000 शिलिंग वाला आदमी पैसे वाला है। लेकिन 50 लाख शिलिंग वाला आदमी खुदा को मानता है और उसको पैसे से प्रेम नहीं, तो वो पैसे वाला नहीं है। पैसे वाला उसको कहते हैं जो पैसे की पूजा करे। दुनिया दीन की जो मिलती धार भाई, दुनिया दीन की जो मिलती धाता तो बेदीन होकर कोई न जाता रे भाई, बेदीन होकर कोई न जाता। मन समझाने की ऐसी बात रे भाई, मन समझाने की ऐसी बात। ये दुनिया अजानी ना समझे धाता रे भाई, दुनिया अजानी ना समझे धाता। धात कहते हैं भेद को, समझ को। मन समझाने की ऐसी बात है, दुनिया अजानी न समझे धाता। उसका भेद नहीं जानती दुनिया कि अगर दुनिया और दीन दोनों साथ एक ही होते, दीन दुनिया की जो मिलती धाता, दीन की समझ और दुनिया की समझ अगर एक ही होती तो कृष्णमस माँ बाप कहते हैं बेदीन कोई ना होता। यानी दुनिया की समझ दीन की समझ से जुदी है। दुनिया की समझ लोभ लालच में है, मूर्खाई में है। दीन की समझ इंसान को खुदा के रास्ते की तरफ लगा जाती है। जो दीनदार हैं वो दुनिया में इस तरह से रहते हैं कि जैसे पानी के अंदर एक मुर्गाबी रहती है, और ये हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है कि तुम दुनिया में इस तरह रहो जैसे मुर्गाबी पानी में रहती है। इंग्लिश में मुर्गाबी को सी गल कहते हैं। ये पानी के पंछी
پانی کی بطخیں جو ہیں وہ پانی میں رہتے ہیں لیکن ان کے شریر بھینے نہیں ہوتے. مولا فرمایا مومن دنیا میں رہتا ہے مرغابی کی طرح, دنیا کا اثر اس کو نہیں لگتا. جس طرح مرغابی پانی میں رہتی ہے مگر شریر اس کا گیلا نہیں ہوتا, بھینا نہیں ہوتا, ایسا مومن دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا کا اس کو اثر نہیں لگتا. کارن کہ وہ دنیا کے اندر رہتا ہے, شام کو جماعت خانے آ جاتا ہے, سارا دن بھی مولا کو یاد کرتا رہتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو مولا کی بندگی کرتا ہے, ساری رات سو کے اٹھنے کے بعد وہ مولانا حضرت امام کا ذکر کرتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا ہے آدھی رات کے بعد اٹھو اور خدا کا آہستہ آہستہ ذکر کرو. بیت الخیال کا جو بول لیا ہے دیندارو, وہ کوئی مسخری نہیں ہے. دنیا میں رہو, کمانی کرو, کھاؤ پیو. راجا جنک راجا بھی تھا, تپیشوری بھی تھا. اسلام میں بھی ایسے بہت سے داخلے ہیں, بہت سے کروڑوں پتی تھے لوگ, مگر دین کے اندر بھی وہ بالکل درویش اور فقیر تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے, راجا بھی تھے. سلیمان نبی بھی تھے, راجا بھی تھے. راجا جنک ستی سیتا کے باپ تھے, رام کے سسرے تھے راجا جنک, مگر وہ راج بھی کرتے تھے اور رات کو اٹھ کے خدا کی بندگی کرتے تھے. تپیشوری بھی تھے, اتنے ہی تپیشوری. ایک دفعہ راجا جنک کو کسی ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا. محفل بیٹھی تھی, دین کی باتیں ہوتی تھی, دھرم چرچا ہوتی تھی. سوال کرتا ہے, کہتے مہاراج آپ راج ولاس کرتے ہو؟ فرمایا ہاں. راج ولاس یعنی راج کا عیش. راج کا عیش جو ہے وہ بالکل انہیری چیز ہے. تو آپ تپسیا بھی ایسی کرتے ہو یعنی عبادت بھی کرتے ہو؟ فرمایا ہاں. تو یہ دونوں چیزیں کیسے چل سکتی ہیں؟ کہا تمہیں اس کا جواب چاہیے؟ کہا مہاراج جو سہلائی سے اس کا جواب مل سکے ایسے طریقے سے مجھے دو تو اچھا. بولے اچھا تھوڑے دن ٹھہرو. راجا جنک نے حکم دیا کہ شہر کے اندر خوب بتی کرو, دیپ مالا کرو, خوشی کرو. ایک بابت کے اندر میرے کو سکسیس ملی ہے, اس کی خوشی کرو. پرجا نے خوب خوشی کی. کہا کہ 3 دن تک خوب خوشیاں مناؤ اور چھٹی بناؤ. آخر شہر کے اندر بتیاں جلی, دیپ مالا ہوئی, جگہ جگہ اچھے اچھے کھانے پکے. راج کی طرف سے بالکل فری لنگر لگ گئے. ناچ گانا, ڈانس, باجا گاجا, عورت مرد اچھے اچھے ببکے دار کپڑے پہن کے نکلے. کوئی نٹ ہے وہ اپنی کرامت دکھاتا ہے, کوئی تلاؤ کے اندر مرجیویا گوتا مار کے دکھاتا ہے. اپنے اپنے کرتب, اپنے اپنے ہنر, اپنا اپنا ڈانس, اپنا اپنا ناچ, سب پرجا امٹ پڑی. راجا جنک دیکھنے کے لیے نکلے. دیکھا کہ بالکل ایک دم ٹاپ کے اوپر خوشی پہنچی ہوئی ہے. اس آدمی کو بلوایا, آؤ بھائی میں آج تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں. مہاراج نوکر کو اشارہ کیا, ایک پلیٹ لے کے آیا, 2 کنارے اونچے, تیل کے ساتھ اس پلیٹ کو بھر دیا لبالب. اس کے 2 ہاتھوں کے اوپر راجا جنک نے یہ پلیٹ رکھی. پیچھے ایک آدمی کو رکھا, ننگی تلوار اس کو دی ہاتھ میں, اور اس کو کہا کہ دیکھو اس کے پیچھے چلے جاؤ, اگر یہ تیل کا ایک ٹیپا بھی گرا لے تو اس کی گردن اڑا دینا. وہ تو کانپنے لگا ادھر ہی. کہتا مہاراج یہ کیا؟ بولا بس آج تم کا ایسا حکم ہے ہمارا, جاؤ. لیکن مہاراج میرے سوال کا جواب, کہتے وہ بعد میں دوں گا, پہلے یہ کام کر کے آؤ. آخر گام میں سے ہو کے آؤ, لیکن خبردار اس کو میں نے پیچھے حکم کر رکھا ہے, تیرا اگر ادھر تیل کا ایک ٹیپا بھی گرا تو یہ تیری گردن مار دے گا. اس کو ایسا اشارہ کیا تھا کہ گردن بردن اڑانا نہیں, مگر اس کو تو یہ بتایا. اس کے تو ہانجے گگڑ گئے. بس پلیٹ لے کے نکلا, آخا گام گھوم کے آیا,
फूंक फूंक के कदम रखे, आस्ते आस्ते शरीर इस तरह से हिलावे के प्लेट नहीं हिले, पसीना पसीना रेत जेब होके आया वापस, बिल्कुल सलामती से वापस आया। एक टीपा भी तेल का उसमें से गिरा नहीं। आके तो गिर पड़ा, हश, सलामत वापस आ गया। बोला हुक्म किया जाओ नहाओ कपड़े बदलो। नहाया धोया कपड़े बदले, महाराज जनक के पास बैठ के खाना पीना खाया। कहते महाराज मेरे सवाल का जवाब, ते मूर्ख तेरे को जवाब तो मैंने दे दिया पर महाराज मैं समझा नहीं। अच्छा पहले उसका बात फिर करेंगे, मुझे ये बता कि गांव के अंदर तुमने क्या देखा? क्या देखा? आपने तो मेरे पीछे जल्लाद रखा था महाराज, वो मलकुल मौत तो साथ ही था तलवार लेके, मुझे कुछ देखने का होश था। मेरी तो सारी सुर्ती इस बात में थी कि इसमें से तेल का टीपा ना निकले, नहीं तो ये अभी मेरी गर्दन मार देगा। ये यमराज तो साथ था। महाराज मैंने कुछ नहीं देखा, क्या बाजा गाजा नाच रंग डांस लेना देना, महाराज मुझे पता नहीं। बोले मूर्ख यही जवाब है, खुदा ने यमराज हर एक आदमी के साथ तलवार दे के जैसे तेरे साथ मैंने रखा, ऐसा हर एक के साथ मलकुल मौत तो साथ ही है, बिल्कुल। और खुदा ने हमको अपने नूर में से नूर दे के हमको दुनिया में भेजा है कि जाओ घूम के आओ। जिस तरह तूने इस तेल की कदर की और तुझको आखे गांव में घूमने पर भी तुम्हें मालूम नहीं कि गांव की मौज शौक क्या है, ऐसा ही जो तपेश्वरी होते हैं वो दुनिया में रहते हैं, राजगादी भी पे बैठते हैं, मगर उनका जो जीव होता है वो इन चीजों के साथ नहीं होता। उनको तो ये फिक्र होती है कि मेरा मौला नाराज न हो जाए, ये मलकुल मौत मेरी गर्दन न मार देवे, ये तेल का टीपा गिर न जाए। मोमन ऐसा है कि दुनिया में रहता है मगर उसकी मोहब्बत दुनिया के साथ नहीं होती। वो कोई भी चीज उसके सामने आती है पहले देखता है मेरा दीन खराब तो नहीं होता, कुछ भी पहले आवे कोई भी चीज। मोमन हमेशा पहली चीज ये देखता है मेरा दीन तो बिगड़ता नहीं। जैसे व्यापारी है, कोई भी ग्राहक आता है किसी भी चीज को हाथ लगावे तो व्यापारी को सबसे पहले यह ख्याल होता है इसमें से मुझे नफा कितना है, मेरा नुकसान तो नहीं होता। यही विचार मोमन का होता है कि ये काम करने में मेरा दीन का नुकसान तो नहीं। आपकी दुकान के ऊपर एक ग्राहक आया, आप उसके साथ बेईमानी से व्यापार कर रहे हो या ईमानदारी से व्यापार कर रहे हो। अगर आप मोमिन हो तो आपको पहले ये ख्याल आएगा कि मेरा ईमान तो खराब नहीं होता, मैं इसके साथ दगा तो नहीं कर रहा। दगा करोगे कितना करोगे? 5 सेंट का करोगे, 5 शिलिंग का करोगे, 50 शिलिंग का करोगे, कभी 5000 शिलिंग का करोगे। 5000 शिलिंग के लालच के लिए कि 50,000 शिलिंग के लालच के लिए अगर ईमान खराब होता है मोमन कबूल नहीं करेगा। मोमन अपनी एक चावल के दाने जितना भी ईमान खराब करने को 5-25,000 शिलिंग की खातिर तैयार नहीं। आप में से किसी को मैं कहूं कि ये मैं 500 शिलिंग देता हूं, इतनी उंगली मेरे को काटने दो, टचली उंगली, ये नाखून जितनी उंगली काटने दो, 500 शिलिंग ले लो, कोई तैयार होएगा? अपने शरीर की उंगली काटने के लिए 500 शिलिंग लेके भी कोई तैयार है? लेकिन उसूल के ऊपर या कोई काम के ऊपर इंसान अपनी गर्दन कटवा लेता है। मोमन कोई भी कीमत के ऊपर अपने ईमान को बिगड़ने नहीं देता। उसके सामने उसकी बीवी बच्चे माल मिलकत, उसके सामने कुछ भी लालच रख दो, ईमान बिगड़ने नहीं देगा। बस ये मोमन की निशानी है। लेकिन जो मोमन अपने आप को मोमन कहलवाए और फिर वो ईमान बेच के दुनिया की चीजें ले लेवे, बस यही चीज से फिर वो हट जाता है। एक डगला जो खराब भरा तो गया, एक डगला अगर खराब भर दिया तो ऊपर से गिर पड़ेगा। हड्डे पसले गिर गए, सब उसके खत्म हो जाते हैं। लालच इंसान को बहुत बुरी है। समी सांझ को दुकान पे बैठा है, जमा खाने नहीं आता, क्या कहता है? मौला बापा तो कहा ना दुकान के ऊपर दुआ पढ़ सकते हो, दुआ तो पढ़ सकते हो, चलो अगर भी दुआ पढ़ लोगे तो फायदा तो होगा। लेकिन मौला ने फरमाया है
अगर तुम रोज जमात खाने नहीं आओगे तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा ईमान चला जाएगा। मैं फरमान में से निकाल के बताऊं, मेरे मुंह से जो चीजें निकल रही हैं दीनदारों, वो इल्म की किताबों में से ही निकाल के मैं आपको कह रहा हूं, एक शब्द भी मेरा नहीं। मौला फरमाया कितने भी तुम बड़े मोमिन होगे, भले तुम्हारी दसमंदी बराबर होगी, लेकिन तुम जो रोज जमात खाने नहीं आओगे तो आहिस्ता 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 1 बरस, आप इस तरह से फरमान करते हैं, 1 बरस, 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। आस्ते आस्ते शंका पैदा हो जाएगी, कारण कि एक टोड़े में से जो निकल आया, एक भेड़, एक बकरी भी टोड़े में से जो निकल गई तो वरु खा जाएगा उसको। वरु यानी शैतान। कमीसांज को सिनेमा जाना मोमन का काम नहीं, कमीसांज को दुकान पे बैठना मोमन का काम नहीं, कमीसांज को कोई आदमी की खराब संगत सोबत में बैठना मोमन का काम नहीं, बल्कि जमात खाना वो चीज है दीनदारों कि अगर खुदा न खास्ता किसी का थोड़ा भी ईमान होएगा और वो रोज जमात खाने आएगा तो रोज मौला के दरबार में आके मौला की संगत मिलेगी, फरिश्तों की संगत मिलेगी, क्योंकि जमात खाने में फरिश्ते भी हैं, मोमनों की संगत मिलेगी, उसका ईमान मजबूत होता जाएगा, वो बड़ा ईमानदार बनेगा, बड़ा आबिद बनेगा, क्योंकि रोज हाजिर इमाम की संगत में आता है। उस आदमी की वलन बदल जाएगी। अगर वो बेदसमंदी होएगा तो रोज जमात खाने आके एक दिन उसके कलेजे में कोई ना कोई तीर लग जाएगा, किसी वाज का, किसी फरमान का, जिनान के पाठ का, वो दसमंदी हो जाएगा, उसके अमाल सुधरने लग जाएंगे। कमीसांज के वक्त ही वो टाइम है कि दुनिया की मेजोरिटी बुराइयां कमीसांज का टाइम होता है। शराबी को शराब शाम को सूझती है, बद औरत की संगत में जाने वाला भी शाम को ही तैयारियां करता है, जुगार खानों में जाने वाला भी शाम को ही जाके बैठता है, और भी बदियां बुराइयां, मेजोरिटी बदियां बुराइयां शाम के वक्त ही होती हैं, उनकी स्टार्ट है, फिर भले वो आधी रात तक चलती होवे, लेकिन जो आदमी शाम को मौला के घर पे आ गया, यहाँ वो छांटा लेके हाजिर इमाम का नूरानी दुआ आशीष लेके उसकी घर वापस जाया, जाके 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे खाना, जाके 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे खाना पीना खा के बाल बच्चों में बैठे, फिर उसको बदियों बुराइयों की तरफ दिल नहीं जाएगा। सिनेमा जाना गुनाह नहीं, लेकिन जमात खाना छोड़ के सिनेमा जाना गुनाह है। इसी तरह से और कई चीजें हैं जो गुनाह में नहीं आती, लेकिन जमात खाना छोड़ के उधर जाना गुनाह है। दाखला तरीके, दुकानदारी करना खुदा की बंदगी है। आप अपनी रोजी रिज़्क पैदा करते हो, हक हलाल में रहो और अपनी दुकानदारी करो, वो दुकानदारी खुदा की इबादत है। लेकिन शाम के वक्त भी आप दुकान खोल के जमात खाने से मुनहरिफ हो जाओ, वो गुनाह है। मौला इधर आया है, मौला का दरबार लगा है, और आपने मौला को छोड़ के 2-5 शिलिंग के ग्राहक के लिए आप दुकान पे बैठे हैं। भला दुकान पे कितना व्यापार हो जाएगा जमात खाने के टाइम पे? आखिर दिन जितना व्यापार इतना समझ लो चलो। तो मौला के लिए आपने ख्याल न किया, लेकिन वो 5-25 के व्यापार का ख्याल किया। क्या मौला में ये शक्ति नहीं कि वो आपको बरकत दे देवे? उसमें ये शक्ति है। देखो दुनिया के अंदर आंख खोल के, अमुक आदमी दीनदारों ऐसे हैं, उनको देख के मुझे तौबा सूझती है। मैं जब भी किसी दुखी को देखता हूँ, मेरे पास बहुत तो लोग आते रहते हैं, अपनी कौम के भी पर कौम के भी। जब भी मैं किसी को दुखी देखता हूँ तो पहले मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ कि या मौला मेरे भी गुनाह मुआफ कर, क्योंकि दुख हमेशा गुनाहों की सजा होती है। एक बात आपने मेरी वाज़ों में सुना होगा बहुत दफा कि हमेशा दुनिया में जितना भी दुख है, कोई भी जात के दुख, वो सब हमारे गुनाहों के कारण है। कोई जात का भी दुख है, 1% दुख ऐसे होते हैं जो खुदा हमारे ऊपर हमारी पारखा के लिए भेजता है, 1%। लेकिन 99% जितने दुख हैं वो हमारे गुनाहों के कारण से होते हैं। तो मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ और फिर मौला का शुक्र करता हूँ कि ये दुख मेरे नहीं है। मगर मैंने देखा है इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे आदमी दीनदारों के सुबह से शाम तक एक ढगे की तरह, गधेड़े की तरह काम करते हैं, लेकिन 2 टक का खाना नसीब नहीं होता
है ना ऐसे आदमी बहुत से, और बहुत से ऐसे आदमी हैं कि वो 9 बजे तो खटले में से निकलते हैं, नहा धो के शान शौकत के साथ 10 बजे आए ऑफिस में, 2 कलाक बैठ के काम करते हैं, 2000 शिलिंग पैदा कर लेते हैं। ये 2 आदमियों में इतना डिफरेंस। आप बोलोगे अकल और आवड़त, अकल और आवड़त क्या मां के पेट से निकली थी? अकल और आवड़त उसको भी मिली, उसको भी मिली। एक के ऊपर खुदा की लानत है, एक के ऊपर खुदा की रहमत है। एक आदमी थोड़ी मेहनत करता है, खुदा इतना देता है, और दूसरा आदमी सुबह से शाम तक गधेड़े की तरह काम करता है, फिर भी उसको इतना नहीं मिलता। ये खुदा के हाथ में है, ये रोजी रिज़्क खुदा के हाथ में है, रहमत अता करना खुदा के हाथ में है, और वो चीजें अलबत्ता हमारे अमाल के सामने हैं। अगर आप खुदा को अपना वाली बना लो, खुदा के ऊपर तवक्कुल और भरोसा रख दो, खुदा के ऊपर सब कुछ छोड़ दो और अपने अमाल सुधार लो, दगा फटका छोड़ दो, हेर फेर छोड़ दो, लुचाई बदमाशी छोड़ दो, रख दो खुदा के ऊपर। देखो फिर 6 महीने बरस के अंदर आपको बरकत न मिले तो आओ पकड़ना मुझे पकड़ना, क्योंकि ये साहब का फरमान है, जमात खाने रोज आओ, 10 मन बराबर दो, हक हलाल की रोजी कमाओ, अमाल अपने नेक रखो। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक आदमी की मेहमानी में यह फरमान किया था, फिर भी अगर तुम आसूदा नहीं बनो तो माँ बाप ने अपनी टाई और कॉलर को ऐसा पकड़ के फरमाया, मुझे गर्दन से पकड़ो। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक आदमी की अरीजे के ऊपर के खुदावंद 20 बरस हुए, मानी आगे और मैं पीछे, हाथ में आती नहीं, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ खुदावंद। रोज जमात खाने जाते हो? खुदावंद वही मेरा टाइम है, उस वक्त ग्राहक आते हैं। अच्छा, बस तो तुम ग्राहकों के पीछे रहो, खुदा के छोड़ दो। 10 मन देते हो, खुदावंद पूरा ही नहीं होता, 10 मन कहां से दूं? उस पर से माँ बाप जरा तप गए, माँ बाप तप गए, माँ बाप गुस्से में आ गया, गुस्सा यानी ऐसा जरा जोश में आ गया। सब बोले कि तुमने मेरी बैत की है, मेरे धर्म में आए हो, मेरा ये तुमको फरमान है, मेरे रूहानी बच्चे बने हो, रोज जमात खाने आओ, हक हलाल की मेहनत में से 10 मन माले वाजिबात दो, अमाल नेक करो, दगा फटका न करो। माँ बाप फरमाया फिर तुम अगर आसूदा नहीं बनो तो मुझे गर्दन से पकड़ो। हमारे तमाम दुख जो हैं उसके जोखमदार हम खुद हैं मोमिनो, हम खुद मोमिन समझते हैं, जानते हैं, इमाम ज़मान के फरमान सुनते हैं, लेकिन फिर हम बेदरकारी से और दुनिया की लालच में पड़ के हम मौला का दर छोड़ देते हैं, इसलिए हम दुख में पड़ जाते हैं। वो बच्चा जो माँ से दूर हट जाता है वो दुखी हो जाता है, लेकिन माँ की शरण में रहने वाला बच्चा हमेशा सुखी रहता है। ये मौलाना हाजिर इमाम का दरबार है, यहाँ हाजिर इमाम की संगत करो आके, और चालू अपने जीवन में भी नेक आदमियों की संगत करो, नेकों की संगत में रहो, अच्छे आदमियों की सोसाइटी में रहो, ये बदी बुराइयां छोड़ दो। ये हमारा काम नहीं। यूरोप की बदियां जो आ गई हैं हमारे जीवन में वो लानत है खुदा की, उनसे दूर रहो। यूरोप में जो अच्छी चीजें हैं हाजिर इमाम फरमाया तुम ले लो, उनका लिबास अच्छा है, तब फरमाया कि तुम यूरोपियन लिबास पहनो, उनकी रहनी कहनी अच्छी है, तब फरमाया तुम यूरोपियन ढंग की रहनी कहनी रखो, उनका खाना पीना नरिशमेंट वाला है, इसी तरह तब फरमाया कि तुम नरिशमेंट वाली फूड खाओ, ऐसा खाना खुराक खाओ। तब फरमाया वो बच्चों को अच्छी तरह से रखते हैं, इस तरह तुम अपने बच्चों का उछेर भी उनसे सीखो, उनमें बहुत सी खूबियां हैं, इल्म की खूबियां उनमें हैं, वो खूबियां तुम अपनाओ, उनमें इतना हसद नहीं। तब फरमाया तुम्हारे में ये चीज बहुत है, तुम इसको निकाल डालो। यूरोप के अंदर जो खूबियां हैं माँ बाप कहते हैं वो तुम खूबियां ले लो, उनकी बदियां बुराइयां छोड़ दो। और यूरोप में बदियां बुराइयां भी बहुत हैं, लेकिन हम लोगों ने उनकी बदियां ले ली और खूबियां छोड़ दी। शराब, जुगार, सिगरेट, डांसिंग, मौज शौक, सिनेमा, खराब खराब चौपड़ियां, गंदी भूंडी फिल्में और गंदी भूंडी पिक्चरें, इन चीजों के अंदर हमारा पैसा, हमारी तंदुरुस्ती, हमारे विचार और हमारा रूहानी साइड सब की सब बर्बाद होती है। इस्माइली के लिए यह चीज वाजिब नहीं, दूसरों भले करते होंगे, क्रिश्चियन भले करते होंगे, दूसरे करते हैं भले करते होंगे, हमारा काम नहीं। हम हाजिर इमाम के मुरीद हैं, हम हाजिर इमाम के रूहानी बच्चे हैं, हम इस्माइली हैं, हम मोमिन हैं। हमारे अमाल, हमारे विचार मौलाना हाजिर इमाम के फरमान के अधीन होने चाहिए। मोमिनों की संगत करो, मोमिनों की सोसाइटी में रहो, मोमिनों से तगपन करो, मोमिनों से लेती देती करो,